guys, welcome back to another vlog and I hope you all are doing safe and sound. So I recently came back from Amritsar and Amritsar na koi jagah nahi hai. It's an emotion. So this multicultural city is definitely a must visit, especially during the weekends. So I also thought of sharing my journey with you. मैंने वहाँ क्या किया, क्या क्या खाया, क्या shopping करी and all of that. So without further ado, let's get this journey started. ऐसे तो अमृतसर पहुंचने के बहुत सारे तरीके हैं बट द बेस्ट वे टू रीच अमृतसर इज़ बाय ट्रेन. तो हमने भी हमारी जर्नी स्टार्ट करी फ्रॉम द निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन दिल्ली और सोते सोते कब सुबह के 7 बजे अमृतसर आ गया हमें पता ही नहीं चला. सो गोल्डन टेम्पल इज़ सेंट्रली बिल्ट ऑन एन आर्टिफिशियल लेक अमृत सरोवर और इसी अमृत सरोवर से इस जगह का नाम पड़ा अमृतसर. सो स्टेशन से सबसे पहले हम अपने होटल गए एंड वी वर स्टेइंग एट होटल गोल्डन लगून. अ स्पेशल मेंशन अबाउट दिस प्रॉपर्टी नॉट बिकॉज वी हैड अ वेरी कंफर्टेबल स्टे ओवर यर बिकॉज दिस होटल इज सेंट्रली लोकेटेड just 300 meters away from the iconic Golden Temple. Our hotel was just 5 minutes away from the Partition Museum और हमारे रूम की विंडो से बहुत ही क्लियरली जलियांवाला बाग भी दिख रहा था. चेक इन करते ही हम सबसे पहले जलियांवाला बाग गए. सिचुएटेड नियर द गोल्डन टेम्पल इन द हार्ट ऑफ ओल्ड अमृतसर टाउन इज़ दिस इनफेमस गार्डन. ये वही जगह है जहाँ पे अमृतसर मैसेकर हुआ था ऑन 13th of April 1919. There is no entry ticket to visit this garden and it opens every day from 6:30 a.m. till 7 p.m. Walking through the lane is going to unsettle you. Try to imagine what if it is blocked just like that day. This garden also has the Martyrs Gallery and Museum जहाँ पे एक छोटा सा exhibition room है which has photos, all the documentaries related to the tragic event. Jallianwala Bagh Smarak, upholding respect, dignity and sanctity. The bullet marks can be still seen on the walls. This is the Martyrs Well. ये वही वेल है जिसमें फायरिंग से बचने के लिए बहुत से इनोसेंट लोग कूद गए थे. And once the bloodbath was over, around 120 bodies were recovered from this well. Although अभी तो parts of this park have been recreated, but it is still a place which takes you back in time. जलियांवाला बाग घूमकर हम सीधे चले गए अमृतसर के सबसे ज़्यादा पॉपुलर हॉल बाज़ार में. इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मार्केट प्लेसेस इन द कंट्री एंड इट इज़ वन ऑफ द बिजिएस्ट शॉपिंग डेस्टिनेशंस ओवर ईयर. दिस हॉल बाज़ार नियर द गोल्डन टेम्पल इज़ वेरी लाइवली. यहाँ पे आपको बहुत सारी तरीके की स्टॉल्स और छोटी छोटी शॉप्स दिख जाएंगी जो ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स, हैंडी वर्क वगैरह ऑफ़र करती हैं. इट्स वेरी पॉपुलर फॉर इट्स फुलकारी एम्ब्रॉयडरी दुपट्टास एंड अमृतसरी जुत्तीज़. तो इस मार्केट को एक्सप्लोर करते करते मैंने भी कुछ अमृतसरी जुत्तीज़ खरीदी ली. हॉल बाज़ार में आगे बढ़ते हुए हमको दिखा द आइकॉनिक गोल्डन टेम्पल इन ऑल इट्स ग्लोरी. One of the most spiritual places in India, the Golden Temple is also known as Sri Harmandir Sahib, is the holiest shrine in all of Sikhism. Golden Temple थोड़ा सा बाहर से देखने के बाद बहुत ज़ोर की भूख लग गई थी and of course it was the time to have the famous Amritsari kulchas. You can also book a car on rent for Amritsar city tour from the Hall Bazaar itself, and by late evening you can return back to your hotel room. Starting from 1400 rupees up till 1800 rupees आपको sharing और non sharing cabs depending upon your preferences easily मिल जाएगी वहाँ से.
After visiting the Jallianwala Bagh and the Golden Temple, our next spot was the Durgiana Mandir. दुर्गियाना मंदिर को लक्ष्मी नारायण मंदिर भी बोला जाता है एंड इट्स अ हिंदू टेम्पल लोकेटेड इन द सिटी ऑफ अमृतसर about 1.6 kilometers from the Golden Temple. It actually bears a stark resemblance to the Golden Temple while also carrying the same sense of peace, tranquility and spirituality. इस टेम्पल के अंदर भी एक बहुत ही सुंदर सरोवर है वेयर वन कैन फाइंड आइडल्स ऑफ गॉडेस लक्ष्मी एंड लॉर्ड विष्णु फ्लोटिंग. The rare sculpture of the sitting Hanumanji, considered one of a kind, is also found in the temple premises. इस मंदिर के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर हैं. शीतला माता का मंदिर है. देयर इज़ दिस बड़ा हनुमान मंदिर जहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी को सबसे पहले लव और कुश ने यहीं पे कैप्चर किया था. दुर्गियाना टेम्पल से निकलते ही हमारे रास्ते में आया अमृतसर का फेमस होलसेल मार्केट. वहाँ पे बहुत सारी शॉप्स मिल जाएंगी आपको जहाँ पे फुलकारी दुपट्टा, जुत्ती वगैरह बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस में मिलते हैं. हम भी 2 शॉप्स गए. पहले हम थोड़ी एक्सपेंसिव शॉप में चले गए जहाँ पे उन्होंने हमें लूट लिया. वहाँ से मैंने 3 दुपट्टे लिए. बैन एवरी दुपट्टा कॉस्टेड मी अबाउट 1550 रुपीज़. और उसके बाद मैंने दूसरी शॉप चेक की जहाँ पे मुझे सेम दुपट्टे 800 रुपये में मिल गए. सो आई वुड हाईली रिकमेंड यू गाइज टू विजिट द ओसवाल मार्केट शॉप in case if you're really into purchasing some good फुलकारी दुपट्टास and juttis at a very discounted price. होलसेल मार्केट इन्जॉय करने के बाद हम सीधा निकल पड़े उस जगह के लिए जिसके लिए मैं पर्सनली अमृतसर आई थी, विच वॉज टू इन्जॉय द रिट्रीट सेरेमनी एट द अटारी वाघा बॉर्डर. बट उसके ऊपर आई एम थिंकिंग टू फिल्म अनदर वीडियो बिकॉज परेड देखने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस मन में रहते हैं. VIP सिटिंग्स मिलती है क्या, ऑनलाइन बुकिंग होती है क्या, एंड ऑल ऑफ दैट. ऑन आवर वे टू अटारी वाघा बॉर्डर रास्ते में आया था इंडियाज़ फर्स्ट इंडिया गेट. सो वी वेंट देयर एंड जस्ट नेक्स्ट टू द इंडिया गेट इज़ द वॉर मेमोरियल. It illustrates the contribution of Sikhs in the freedom fights, and it also highlights the war that India had, especially with Pakistan post-independence. It also provides details of the creation of Bangladesh and how Indian soldiers played an essential role in it. It also has a 45-meter high stainless steel sword at War Heroes Memorial. So this is the famous गोविंदगढ़ फोर्ट एंड ओरिजिनली इस फोर्ट को बागिया दा किला कहा जाता था. और महाराजा रंजीत सिंह जो कि सबसे पहले महाराजा थे सिख एम्पायर के, उन्होंने इस फोर्ट को कॉन्कर किया था और उन्होंने इसका नाम बदला था गोविंदगढ़ फोर्ट आफ्टर गुरु गोविंद सिंह द 10th गुरु ऑफ द सिख्स. बहुत से शोज़ और लाइव परफॉर्मेंसेस हर दिन गोविंदगढ़ फोर्ट में होती है. उनमें से एक शो था विस्परिंग वॉल्स विच वॉज द लाइट एंड साउंड शो. सो एवरी इवनिंग अ मल्टीमीडिया लाइट एंड साउंड शो इज़ कंडक्टेड एट द premises of the Govindgarh Fort. This show, which is named Whispering Walls, highlights the illustrious past of the fort as well as the city. इसकी आधे घंटे की ड्यूरेशन होती है और ये शो 2 लैंग्वेजेस में होता है, पंजाबी में और इंग्लिश में. अंदर एक बहुत ही फेमस 7D शो होता है जिसका नाम है शेर पंजाब. यहाँ पे बहुत ही फेमस पगड़ी म्यूज़ियम भी है वेयर इंटरेस्टिंग फॉर्म्स ऑफ टर्बन्स फ्रॉम अक्रॉस पंजाब आर केप्ट ऑन डिस्प्ले. गोविंदगढ़ फोर्ट घूमते घूमते वी वर रियली टायर्ड एंड वी डिसाइडेड टू कॉल इट अ डे. बस लास्ट में गोल्डन टेम्पल तो जाना ही था देखने के लिए कि वो कैसा लगता है रात में. एंड ऑनेस्टली द शिमरिंग गोल्ड एंड प्रिस्टीन वाइट ऑफ द स्ट्रक्चर शाइन्स ब्राइटर देन एवर एट नाइट एंड इट वॉज मैजिकल देयर.